Good morning, students. Here Seema Sharma, PGT Biology from Suru School. Okay, students, our chapter Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate is going on. In today's lecture, we will discuss about climate and adaptations. Okay, climate and adaptations. Climate has a profound effect on all living organisms. हमें पता है कि क्लाइमेट का हमारी लाइफ पे बहुत एक मेजर रोल है. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव. लाइक जो एनिमल्स होते हैं, जो जिस इन्वायरमेंट में होते हैं, उनमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो दैट दे कैन सर्वाइव देयर ईजिली, राइट. Like animals living in a very cold, hot climate must possess some special features to protect themselves against the extreme cold and heat, जो उनको प्रिवेंट करते हैं, जो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं ना एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट कंडीशंस. दे हैव सम characteristics features over there, right, in their body. In 6th class, chapter 9, just adaptations is given, right. What is adaptation? Adaptation means that in your body some changes are going on according to the weather, according to the climatic conditions, so that you can easily survive there. It is called adaptation. यानी हमारी बॉडी वहाँ के वेदर, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, उसको वहाँ सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक रहने के लिए कुछ फीचर्स जो है डेवलप्ड हो जाते हैं, उसे अडेप्टेशंस कहते हैं. यानी बॉडी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट कर लेती है और अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करती है जिससे वो वहाँ पे इजीली रह सके. ओके, in chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil, but in this chapter we are discussing about effect of climate on animals only. So here is as an example of adaptations of animal to climate conditions, we discuss only animal living in polar regions and tropical rainforest. We are discussing about only two type of animals, right, polar region animals and tropical rainforest animal. As the name suggests, according to the name, polar regions are situated near the poles. Very obviously, if I'm saying that polar regions, that means the animals, I'm discussing about the animals who are situated near the poles, like North Pole and South Pole. Some well-known countries that are belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA, Siberian region of Russia, and here is a examples of tropical rainforest are found in India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. So firstly we discuss about the polar region. Okay, take an outline map of the world and mark the polar region in blue, and similarly mark the tropical region in the red. Is a kind of activity. Okay, polar region present in the extreme climate, that means there is a extreme ice, extreme cold is there. The region are covered with snow and it is very cold for most part of the year. पूरे mostly एक ईयर के mostly part में ये यहाँ पे snow काफ़ी cold रहती है. For 6 months the sun does not set at the poles, and while for other 6 months the sun does not rise. यानी कि यहाँ पे 6 month continuously sun rise ही नहीं होता है, right, and not set यानी कुछ महीने 6 month सन सेट ही नहीं होता है, राइट. इन विंटर्स में टेम्परेचर इज़ वेरी इन अ माइनस डिग्री, दैट इज़ -37 डिग्री सेल्सियस. एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस. एनिमल्स इन कंडीशंस में रहने के लिए क्या है, एक उनकी बॉडी अडेप्टेड होती है. कैसे? सी उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं जिनके कारण वो वहाँ पे रह सकते हैं ईजिली. Polar bears have white fur so that they are
नॉट ईजिली विजिबल इन स्नोई वाइट बैकग्राउंड, उनमें वाइट फर होते हैं जिसके कारण, वो वैसी बात है स्नो के कारण वो भी वाइट और उनकी बॉडी के फर भी वाइट, तो वो इजीली दिखाई नहीं देते हैं प्रीडेटर्स को होते हैं जो उनको ईट करेंगे। ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, अब वो खुद वाइट कलर के हैं तो वो स्नो में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनको जिनका खुद शिकार करना है, जो वो खुद खाना चाहते हैं, वहाँ इजीली पहुँच पाते हैं और उन्हें इजीली कैच कर पाते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव अ टू थिक लेयर ऑफ फर। फर एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फर? फर इज अ वर्क एज इंसुलेटर, राइट? It firstly it trap the air here, right? Firstly trap the air so that body keep warm, okay? And also don't move outside the heat from the body. This is the function of fur. Firstly trap the heat and don't move outside the body heat. This is the function of fur. In fact, they are so well insulated that they can have moved slowly and rest often to avoid getting overheated. ये बहुत एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जिससे क्या हो सकता है, धीरे धीरे बॉडी से हीट है वो धीरे धीरे से बाहर जाए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा हीट बॉडी में अकोमुलेट हो जाती है तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, ओवर हीटेड हो जाती है। तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है फर की। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज, जब वार्म डेज होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है इनकी, लाइक सो द पोलर बियर गोज फ्रॉम फॉर स्विमिंग, दे आर गोइंग फॉर स्विमिंग, इट इज़ अ गुड स्विमर, राइट? एंड इट पोज आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पंजे होते हैं वो वाइड और लार्ज होती हैं, विट हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। अगर इन्हें वार्म डेज में एक्टिविटी करनी है, राइट, वार्म डेज में एक्टिविटी करनी है तो ये क्या करेंगे, स्विमिंग के लिए जाएंगे। इनके जो पोज होते हैं, पंजे होते हैं वो बहुत वाइड और लार्ज होते हैं, वो उनको स्विम में भी हेल्प करते हैं एज वेल एज स्नो आइस में चलने में भी इनको हेल्प करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्राइल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। दे कैन क्लोज द नोस्ट्राइल, नोस्ट्रल्स मीन्स नोज को काफ़ी लंबे टाइम तक वो क्लोज कर सकते हैं और वाटर में रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल की, ये अपने प्रे को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, पहचान जाते हैं जो इनको खाना है, जो इनका फूड है। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प दिस फ्लो चार्ट। यू कैन सी इट इज़ अ फ्लो चार्ट, it's a polar bear. You can see the white fur not easily visible in snowing white background. फर्स्ट आप देखिए इसमें बता रखा है कि इसका जो वाइट कलर के फर है वो उसको इजीली विजिबल नहीं होने देते हैं वाइट बैकग्राउंड में। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जो इसको ईजिली क्या करते हैं, इट हैव टू बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, वो अपने शिकार को ईजिली क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व शार्प एंड क्लॉज, इनके पंजे बहुत लंबे और लॉन्ग और कर्व्ड होते हैं, शार्प होते हैं, ये अपने ईजिली इट हेल्प टू वॉक ऑन आइस, आइस पे चलने में हेल्प करते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, जो इसकी बॉडी को वार्म रखती है। ओके, एंड दीज फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। आप इससे क्या समझा, आपने देखा होगा कई बार बहुत फैटी पर्सनस होते हैं, उन्हें बहुत कम ठंड लगती है। रीज़न क्या है, जो उनमें फैट होता है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता है। दीज कीप्स इट वार्म इन कोल्ड वेदर। इट हैज़ अ टू थिक लेयर ऑफ फर का क्या काम करता है, इट प्रीडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी, इसके वाइट कलर के फर के अगर इन्हें कोई ईजिली नहीं देख पाता है, राइट। ओके, आज हम सिर्फ स्टडी करेंगे पोलर बियर के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करेंगे पेंगुइन के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।